Yes. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Kapil Srivastav, good morning, beta. Morning, sir. Kapil Srivastav, good morning, beta. Morning, sir. Good morning, Rani. Kapil Srivastav, good morning, beta. Good morning, sir. Good morning, Kapil. Very good. Yes. Shiv Ganga, good morning, beta. Good morning, sir. कपिल बेटा माइक बंद कर दो. हाँ, गुड. चलिए, गौरी, गौरी, गुड मॉर्निंग. ओके. शीतल राठौड़, गुड मॉर्निंग बेटा. शीतल राठौर, गुड मॉर्निंग. अरे, तो भाग गई. चलिए. सो यस शीतल, गुड मॉर्निंग बेटा. Okay, ठीक है. So as I can see, only 24 students are present right now. Okay, they might be joining later on. Well, so let us continue the section. हाँ बेटा. हाँ Sir, our बोलो. school is starting. Sir, our school is starting. Who is asking this? Sir, Arpita Gujar. Beta, your school is starting, but right now we are calling only the students of class 12. Okay, because still the COVID cases are increasing. Okay, so Sir. right now the condition related to the COVID is as such that it is not good, okay, to call all the students of same school at a time. Okay, so it is a situation of wait and watch. So we can say the trial and error, something like that. So we are calling the students of standard 12th first, and according to the condition, okay, we'll try to call the students of other classes, but everything depend on the condition of COVID-19. Okay, so right now there is no planning as such for your classes. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. So till you please enjoy your Chinese Manchurian noodles at home. Okay. Sometimes you just remember your teachers also. चलिए. So आगे बढ़े बेटा. Yes, sir. Very good. Yes, Thank sir. you. Thank you. Thank you. So just wait for a second so that I will come to that section where we were in actual issue. Yes, we were doing this one only. Okay. Anna, we are supposed to start this one. A mutiny becomes a popular rebellion. In fact, what I remember, we have started it already. Well, so ये वाला section हमारा last paragraph था that we have completed. Is it okay? दिगेश बार हटे. Yes. यहाँ तक हमने कंप्लीट किया. ठीक, गुड बेटा. चलिए, सो आगे बढ़ते हैं, है ना. नाउ सच ए सिचुएशन सॉरी. सो इस प्रकार की जो कंडीशन थी वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 1857 तक आते आते बन गई. आफ्टर 100 years of conquest and administration, okay, the East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857, and it threatened the company's very presence in India. So, after 100 years of conquest and administration, ठीक है, अपनी जीत और एडमिनिस्ट्रेशन के लगभग 100 सालों में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने खिलाफ इतना बड़ा रेबेलियन फेस करना पड़ा. सृष्टि, गुड मॉर्निंग. So sepoys mutinied in several places, beginning from Meerut
and a large number of people from different section of society rose up in rebellion. ठीक है, तो ये जो म्यूटिनी थी, म्यूटिनी मीन्स सिपाहियों का विद्रोह, मेरठ से शुरू हुआ। कल हमने एक वीडियो देखा था रिगार्डिंग द मंगल पांडे। ओके, सो द large number of people from different section of society rose up in rebellion. So वो जो म्यूटिनी थी, विद्रोह था, उसकी शुरुआत करी किसने? सोल्जर्स ने। ठीक है, इट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ कैंट, और धीरे धीरे large number of sections of society, the peasants, the tribal people, the farmers, the old king and zamindars, all have joined this rebellion. Because someone is using its audio. Mahek, if there is any issue with your mobile phone regarding audio, please switch off the audio. So some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. बहुत सारे लोग क्या मानते हैं? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जितना बड़ा रेबेलियन, जितना बड़ा विद्रोह इंडिया में 1857 में किसी कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट में हुआ, that much rebellion didn't take place in any part of the world. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. next section Yes, is- sir. Yes, sir. बिल्कुल। Now, the next section is from मेरठ to दिल्ली। अच्छा, इससे पहले एक बात ध्यान से सुनो। Yesterday I have sent the homework on homework app. ध्यान है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. there are many students who have still not started doing their work. कौन है ये? आसमी बंद कर दो। तुम्हारे माइक से कोई इश्यू होता है हमेशा, स्विच ऑफ योर माइक। ठीक, ये मैंने आप लोगों को शायद कल भेजा था। ठीक है, सो अभी तक जो है ओनली 16 स्टूडेंट्स ने देखा है और ओनली 12 ने व्यू किया है, सबमिशन है। ठीक है, अस्मी मंथनवार ऑडियो बंद करो। ठीक, so all the students please do it, okay, today itself and submit. यहां तक बात आई समझ में? अनुष्का रॉय, अनुष्का, यस, सृष्टि शुक्ला, Yes, done. होमवर्क ऐप का मैंने आप लोगों को कल होमवर्क भेजा था। आपका होमवर्क अभी तक आया नहीं है सृष्टि शुक्ला। Sir, I will do it today. हाँ, Sir, I have done. Sir, I have also done. हाँ, that Sir, I have also done. बिल्कुल। ये जब आज की डेट कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे पास में कंप्लीट फिगर आ जाएगा। बट व्हाट आई कैन सी इज ओनली 12 स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड। ओके, नित्या वडस्कर, अनुष्का रॉय, शारदा कौरासे, शिवराज वाड़ई, तन्वी, चिन्मय, योगेश्वरी, शाविनी, आद्या, संस्कृति, मंथन जी एंड समीक्षा राजूरकर। ठीक है, इतने स्टूडेंट्स ने सबमिट किया है। ओके, सो ये जो है आज शाम तक सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास सबमिशन आ जाना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. गुड। नाउ Yes, sir. Yes. so the next section is from Meerut to Delhi. ये वाला हम हेलो हेलो भैया, टिफिन ले जाना है। कहाँ पे हो?
गौरी चौहान हाँ, ठीक है। स्विच ऑफ। गौरी आ रहा ना, हो माइक गया। बंद, गौरी माइक बंद करो। ये वाला हमने कर लिया था क्या बेटा? Yes, sir. Till Firangis we have completed. ठीक है, ओके। So the soldiers were determined to bring an end to their rule in the country, है ना? The soldiers were determined मतलब पक्का इरादा कर रखा था। क्या कर रखा था? पक्का इरादा कि अब ब्रिटिशर्स को हम हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकेंगे। So the soldiers were that much determined to bring an end to their rule in the country कि अब तो हम फिरंगी वर्ड इज यूज फॉर ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने पक्का इरादा किया था अब हम इनका रूल, इनका राज्य खत्म कर देंगे। परंतु सोल्जर्स तो सोल्जर्स हैं, साधारण सिपाही हैं। तो दूसरा सवाल ये हुआ, who would rule the land instead, है ना? इनको यदि हम खत्म कर देंगे तो फिर इस देश का राजा कौन होगा? So after some time the soldiers had an answer within themselves, है ना? अपने ही ग्रुप में से इस प्रश्न का उत्तर उनके पास निकल के आया कि ब्रिटिशर्स का रूल हिंदुस्तान से खत्म होने के बाद में हम क्या करेंगे, वापस जो मुगल डायनेस्टी के एम्परर हैं बहादुर शाह जफर, उन्हें हम इस देश का फिर से राजा बनाएंगे। The Sepoys of Meerut rode all night of 10th May to reach Delhi in the early hours next morning, ठीक है? So पूरी रात भर घुड़सवारी सेना घोड़ों पर बैठ करके वो लोग मेरठ से कहाँ आए, दिल्ली आए, अगले रोज सुबह सुबह पहुंच गए। As news of their arrival spread, the regiments stationed in Delhi also rose up in rebellion. जैसे जैसे उनके अराइवल आने की खबर, तो मेरठ के जो सिपाही थे उनके आने की खबर जब दिल्ली के सिपाहियों को मिली तो उन्होंने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, रेबेलियन कर दिया। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वेर किल्ड, आर्म्स एंड एमुनेशन सीज्ड, बिल्डिंग्स सेट ऑन फायर। फिर से क्या हुआ, जितने ब्रिटिश ऑफिसर्स थे दिल्ली में भी मार डाला गया, ठीक है? जितने हथियार थे वो सिपाहियों ने अपने कब्जे में कर लिए, एंड द बिल्डिंग्स सेट ऑन फायर, और जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनमें आग लगा दी। Triumphant soldiers gathered around the wall of the Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him. Triumphant soldiers, okay, वो soldiers जिन्होंने जीत हासिल कर ली थी, जीत गए थे, अंग्रेजों को मार डाला, तो इन्होंने क्या किया, लाल किले को घेर लिया और बादशाह दैट इज मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर से मिलने की जिद करने लगे। The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर उस समय तक बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो वो जोश और जज्बा उनके अंदर वैसे भी नहीं था, तो he was not quite willing। शुरू में बहादुर शाह जफर जो थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस विद्रोह में शामिल होना नहीं चाहते थे, मना कर रहे थे। उनका कहना ये था कि ब्रिटिशर्स बहुत ताकतवर हैं, इनसे उलझना नहीं चाहिए। ओके, सो ही वाज नॉट विलिंग, ओके, इंटरेस्टेड नहीं थे कि हम क्या करें, इनसे उलझें। They forced their way into the palace and proclaimed बहादुर शाह जफर as leader। जब सिपाहियों को और कोई रास्ता नहीं मिला तो they forced their way। फोर्स देयर वे का मतलब होता है बिना परमिशन के जबरदस्ती लाल किले के अंदर घुस गए और बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना लीडर डिक्लेयर कर दिया। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The aging emperor had to accept this demand। तो शुरुआत में तो मना करते रहे, पर जब सिपाहियों का इतना जोश देखा तो फाइनली उन्होंने सिपाहियों की इस डिमांड को क्या कर लिया,
एक्सेप्ट कर लिया। He wrote letters to all the chief and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. He wrote letters to all the chief. ठीक है, उन्होंने जितने भी राजा महाराजा थे, जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने हिंदुस्तान के जितने भी राजा महाराजा थे, ठीक है, उनको क्या लिखना शुरू किया? लेटर लिखना, खत लिखे। किस लिए खत लिखना शुरू किया? ताकि कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है संगठन बनाना, एक ग्रुप बनाना। तो मुगल एम्परर ने क्या किया? हिंदुस्तान के जितने भी राजा महाराजा थे, छोटे जागीरदार थे, उनको सबको खत लिख करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक एसोसिएशन, संगठन बनाने का लेटर लिखा कि आओ हम सब मिल करके क्या करें? ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़े। वर्षा यादव, यहां तक बात आई समझ में बेटा? ओके, ठीक है। रितांशु निखाड़े, अंडरस्टूड अप टू दिस सेक्शन? Sir. ठीक है। This single step taken by Bahadur Shah has great implication. बहादुर शाह जफर ने, जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोल्जर्स का जो विद्रोह था उसको समर्थन दे दिया। उसको क्या किया? सोल्जर्स का जो विद्रोह था उसको एक्सेप्ट कर लिया। इट हैड ग्रेट इम्प्लीकेशन। तो बहादुर शाह जफर ने जिस तरीके से क्या किया, इस रेबेलियन को सपोर्ट किया, उसके बहुत बड़े प्रभाव हुए। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मुगल डायनेस्टी थी उसने हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर किसी जमाने में रूल कर चुकी थी। ठीक है, यानी मुगल डायनेस्टी जो थी वो बहुत पहले से ही क्या कर रही थी? हिंदुस्तान पर राज कर रही थी। ठीक है, इसलिए मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड चीफटेन्स, जो मैक्सिमम छोटे छोटे रूलर्स थे और चीफटेन्स जो थे, ठीक है, कंट्रोल्ड डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर। ये लोग मुगल रूलर्स के बिहाफ पर, मुगल रूलर्स के बिहाफ पर क्या करते थे? डिफरेंट टेरिटरीज को कंट्रोल करते थे। यानी कहीं ना कहीं ये जो राजा महाराजा थे ये अभी भी किसे अपना रूलर मानते थे? मुगल एम्परर को अपना रूलर मानते थे। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. 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 Switch off the audio. Switch off your audios now. रितांशु निखाड़े, स्विच ऑफ ऑडियो। रितांशु ऑडियो बंद करो। The Mughal dynasty has ruled over a very large part of the country. ठीक है, जो मुगल डायनेस्टी थी वो कंट्री के बहुत बड़े पार्ट पर रूल करती थी। So most smaller rulers and chieftains control different territories on behalf of the Mughal ruler. ठीक है, जो मैक्सिमम छोटे मोटे रूलर्स थे, जमींदार थे, वो अभी भी किसे? मुगल एम्परर को ही अपनी सुपीरियर अथॉरिटी मानते थे। आरुष कुंभारे, यहां तक बात आई समझ में? आरुष कुंभारे, okay. Anisha Saha, did you understand up to this section? Yes, sir. Good. So, threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor
could rule again, they too would be able to rule their own territories one more under Mughal authority. ये जो छोटे मोटे स्मॉलर रूलर्स और चीफ्टेन्स की बात हुई, इन लोगों को ये डर लग रहा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो धीरे धीरे हमारे राज्यों पर भी, हमारी टेरिटरीज पर भी कब्जा कर लेगी। इसलिए इनमें से बहुत सारे रूलर्स और चीफ्टेन्स जो थे, उन्होंने किसका साथ देने का डिसीजन किया? मुगल एम्परर का। उन्हें ये लग रहा था कि यदि ब्रिटिशर्स हार जाएंगे, हिंदुस्तान से यदि ब्रिटिशर्स को भगा दिया जाएगा, तो हमें भी अपने अपने एरियाज पर इंडिपेंडेंटली रूल करने का मौका मिलेगा। The British had not expected this to happen. ब्रिटिशर्स को इतना सब होने का एक्सपेक्टेशन नहीं था। ब्रिटिशर्स ने ये नहीं सोचा था कि इतना सब भी हो जाएगा, कि सोल्जर्स रिवॉल्ट करेंगे और उस रिवॉल्ट को सपोर्ट कौन करेगा? मुगल एम्परर। ओके, so they thought the disturbance caused by the issue of the cartridges would die down. उनको ये लग रहा था, उन्होंने ये सोचा था कि जो कार्ट्रिजेस से रिलेटेड इशू है वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी थोड़ा प्रॉब्लम आया है, बेफिक्र थे, आज न कल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बट बहादुर शाह जफर्स डिसीजन टू ब्लेस द रिबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। परंतु वो जो कंडीशन थी ब्रिटिशर्स के बस से बाहर हो गई। ब्रिटिशर्स को लगा छोटा सा झगड़ा है, इशू है, खत्म हो जाएगा। बट क्या हुआ? ये बहुत बड़े रिबेलियन में कन्वर्ट हो गया। वो जो एक छोटा सा कार्ट्रिजेस से रिलेटेड इशू था, इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ वेरी बिग रिबेलियन। व्हाई? बिकॉज द बहादुर शाह जफर हैज डिसाइडेड to give support to the rebellion. बहादुर शाह जफर ने क्या किया? उस रेबेलियन को सपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया। Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. It gives them the courage, hope and confidence to it. So लगभग, है ना, अक्सर क्या होता है, जब भी लोगों को ऐसा लगता है कि इस परेशानी से दूर होने का, इस झंझट से, ब्रिटिशर्स के इस रूल से भागने का हमें एक मौका मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे? उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इट गिव्स देम द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। यहीं तक है ना? ओके बेटा। So the next section is the rebellion spread. ठीक है? रेबेलियन स्प्रेड मतलब अभी तक जो सोल्जर्स थे वो मेरठ से कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। Dear students, just I want to take a short break for drinking water, है ना? आप लोग भी पानी पी लीजिए। ओके, I am giving you only 1 minute time. Well, okay. So let us continue. Now the next topic is beta the rebellion spread, है ना? अब rebellion spread मतलब यहां हम ये डिस्कस करेंगे कि सोल्जर्स जो थे वो मेरठ से कहां आ गए? दिल्ली आ गए। सोल्जर्स मेरठ से कहां आ गए? दिल्ली आ गए। ठीक है, गुड। दिल्ली आने के बाद, दिल्ली आने के बाद में क्या हुआ? मुगल एम्परर ने इंडिया के डिफरेंट रूलर्स जो थे, राजा महाराजा, उनको
मैसेज भेजना शुरू किया। किसके जरिए? लेटर्स के जरिए। व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं भेज पाएंगे उस समय पर, ठीक है। सो इसके बाद में क्या हुआ, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जो सोल्जर्स थे और जो राजा महाराजा थे, उन्होंने क्या, ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट करना शुरू किया। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. So after the British were Yes, sir. from Delhi, there was no uprising for almost a week. ब्रिटिशर्स को दिल्ली से खत्म करने के बाद लगभग एक हफ्ते तक कहीं से कोई अपराइजिंग यानी विद्रोह की घटना नहीं हुई। क्यों? बिकॉज इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज टू ट्रेवल, है ना। उस समय पर डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो थे नहीं, तो खबर क्या पहुंचेगी? या तो इंसान एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि देश के बाकी के इलाकों तक इस म्यूटिनी की खबर पहुंचने में कुछ समय लग गया। तो एक हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि विद्रोह की खबर, म्यूटिनी की खबर पहुंचने में समय लगा। एंड देन a spurt of mutinies began, और इसके बाद हफ्ते भर बाद ही एक एक करके इंडिया के अलग अलग टाउन्स से, अलग अलग एरियाज से क्या होना शुरू हुआ? म्यूटिनी, विद्रोह होना शुरू हुआ। आर्यन यंगलवार, यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. गुड, चलिए। सो रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिन, एक एक करके ब्रिटिशर्स की जो रेजिमेंट थी उन्होंने म्यूटिन मतलब विद्रोह करना शुरू किया। एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। और ये जो रेजिमेंट्स थी, इन्होंने अपने अपने कैंटोनमेंट्स में, आर्मी एरियाज में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया, लोकल ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार डाला और जाकर के कहा, अपने साथियों के साथ मिल गए। तो सम सोल्जर्स मूव्ड टू दिल्ली, सम मूव्ड टू कानपुर एंड लखनऊ। यानी यहाँ पर सारे सोल्जर्स क्या हो रहे थे? इकट्ठा हो रहे थे। आफ्टर देम मतलब सिपाहियों के बाद, ओके। सो आफ्टर द सोल्जर्स, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around the local leaders, zamindars and chiefs, who were prepared to establish their authority and fight the British. इसके बाद में क्या हुआ? People of the towns and villages, ठीक है, जो बड़े बड़े शहर थे, ठीक है, वहां से भी लोगों ने क्या करना शुरू किया? विद्रोह करना शुरू किया। एंड दे रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स, और किसके? जो अपने लोकल लीडर्स थे उनके साथ में ये लोग जुड़ गए। रैलीड का मतलब होता है साथ देना। तो जो लोकल लीडर्स थे उनके साथ में जो कॉमन पीपल थे वो क्या हो गए? जुड़ गए और रेबेलियन में पार्टिसिपेट किया। जमींदार एंड चीफ वेर प्रिपेयर्ड टू एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश, है ना। तो जो लोकल लीडर्स थे या बड़े बड़े जमींदार थे, चीफ थे। नाना साहेब, who was the adopted son of late पेशवा बाजीराव, ठीक है, जो पेशवा बाजीराव थे उनके अडॉप्टेड सन का नाम क्या था बेटा? नाना साहेब। शिवराज, क्या नाम था? नाना साहेब सर। ओके, नाना साहेब lived a place near कानपुर। कानपुर के पास एक प्लेस था, जगह थी, वहां पर रहते थे। वानी त्रिवेदी, उस जगह का नाम क्या है बेटा? जहां पर पेशवा, कानपुर। नहीं कानपुर नहीं है, कानपुर के पास में, वो लिव्ड नियर कानपुर। तो कानपुर के पास कौन सी जगह है? आपने कभी सुना है बिठूर? यस सर, यस सर। हाँ, कानपुर के पास में,
कानपुर के पास एक बड़ा सा गांव था बिठूर, और ब्रिटिशर्स ने जो पेशवा थे उनको पुणे से निकाल करके कहां पर सेटल कर दिया था? बिठूर में। नाना साहेब भी कहाँ रहते थे? बिठूर में। So Nana Sahib, who was an adopted son of late Peshwa Bajirao, gathered armed forces. उन्होंने अपने जितने भी सैनिक थे और बाकी की जो विद्रोही सैनिक थे उनको gathered मतलब इकट्ठा किया, and expelled the British garrison from the city. Just a minute बेटा, हाँ। और जो ब्रिटिश गैरिसन था, ब्रिटिश गैरिसन मतलब ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी, उसको शहर से क्या किया? भगा दिया। ही प्रोक्लेम्ड पेशवा हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? पेशवा। कि अब मैं अपने पिताजी की जगह पर क्या बनूंगा? खुद पेशवा बनूंगा। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. Okay. So he declared that he was a governor under the Emperor बहादुर शाह जफर. उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया कि वो किसके अंडर में? एम्परर बहादुर शाह जफर के अंडर में एज ए गवर्नर राज करेंगे। यानी चाहे सोल्जर्स हो, चाहे कॉमन मैन हो, जमींदार हो, हर व्यक्ति ने मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को क्या मान लिया था? लीडर और रूलर ऑफ इंडिया। ठीक। इन लखनऊ में बिजरिस कद्र, who was the son of the deposed नवाब वाजिद अली शाह, was proclaimed the new नवाब। इसी तरीके से लखनऊ में, ठीक है, बिरजिस कद्र को क्या? नया नवाब डिक्लेयर कर दिया। He too acknowledged the suzerainty of the बहादुर शाह जफर। बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को क्या मान लिया? इंडिया का एम्परर मान लिया, और एक्सेप्ट किया कि मैं किसके अंडर में रूल करूंगा? बहादुर शाह जफर के अंडर में रूल करूंगा। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British. जो बिरजिस कद्र जो थे उनकी उम्र बहुत कम थी, ठीक है, तो उनके बदले उनकी जो मदर थी, व्हाट इज द नेम ऑफ द मदर? बेगम हजरत महल। सो लखनऊ की जो बेगम, दैट इज क्वीन, है ना, तो उनका नाम था हजरत महल। तो शी टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने क्या किया? विद्रोह में भाग लिया। लाइकवाइज इन झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ऑल्सो ज्वाइन द रेबल सिपाही। इसी तरीके से झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? इन सैनिकों का साथ देने का डिसीजन लिया। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So Rani Lakshmibai fought with the British along with Tatya Tope, who was the general of Nana Sahib, और तीनों ने मिलकर के, that is रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब, तीनों ने मिलकर के क्या किया? किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी। इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over
द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट। ठीक है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश के मंडला इलाके के आसपास तो रानी अवंतीबाई लोधी थी रामगढ़ की, उन्होंने भी किसके खिलाफ विद्रोह किया? ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The British were greatly outnumbered by the rebel forces. अब इसका मतलब क्या है कि जो रेबल फोर्सेस थे यानी जो लोग विद्रोह कर रहे थे, तो विद्रोहियों के कंपैरिजन में ब्रिटिशर्स की संख्या कैसी थी बेटा? बहुत कम थी। द ब्रिटिश वेर ग्रेटली आउटनंबर्ड बाय द रेबल फोर्सेस। जो ब्रिटिश थे उनकी संख्या विद्रोही सिपाही और विद्रोही लोगों के कंपैरिजन में कैसी थी? बहुत कम थी। तो संख्या में, नंबर में कम होने के कारण दे वर डिफीटेड इन ए नंबर ऑफ बैटल्स। यानी 1857 का जो रिवॉल्ट था उसकी शुरुआत में, 1857 के रिवॉल्ट की शुरुआत में क्या हुआ? बहुत सारे जो बहुत सारी लड़ाई थी वो किसने हारी? ब्रिटिशर्स ने हारी। तो जब शुरुआत में स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स अलग अलग जगहों पर लड़ाई हार रहे थे। अक्षर तिवारी, यू ओनली स्पीक। आवाज आ रही है? अक्षर तिवारी। Yes, sir. Now, so the Britishers were defeated in a number of battles. Britishers बहुत सारे युद्ध 1857 के रिवॉल्ट की शुरुआत में हारते थे। This convinced the people that the rule of the British had collapsed for good, and it gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. ठीक है, तो जब शुरुआत में स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स युद्ध हार रहे थे, तो इट कन्विंस द पीपल, लोगों में भरोसा जागा कि ब्रिटिशर्स का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। और इस भरोसे ने उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिया, ये हौसला दिया कि वो लोग खड़े होकर के इसमें रेबेलियन में पार्टिसिपेट करें। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब ब्रिटिशर्स शुरुआत में लड़ाइयां हारते रहे, तो ब्रिटिशर्स के हारने से इंडियंस को इस बात का साहस मिला, एनकरेजमेंट मिला कि वो क्या करेंगे, अब हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स को हारते देखकर बड़ी संख्या में लोग क्या हुए, ज्वाइन करें। A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. ठीक है, तो लगभग हिंदुस्तान के बहुत सारे एरियाज में ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेबेलियन जागा, परंतु सबसे ज्यादा रेबेलियन किस इलाके में था? रीजन ऑफ अवध। रीजन ऑफ अवध मतलब लखनऊ के आसपास का एरिया। ठीक, on 6th of August 1857, ठीक है, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander in chief expressing the fear felt by the British. ठीक है, उस जमाने में यानी 1857 में एक ब्रिटिश ऑफिसर थे कर्नल टाइटलर, उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ यानी अपने हायर अथॉरिटी को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उन्होंने ब्रिटिशर्स के डर के बारे में बताया कि इस 1857 के रिवॉल्ट से बाकी के जो ब्रिटिशर्स हैं वो कितने डरे हुए। ठीक, तो क्या लिखा उसने? Our men are cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. Our men मतलब ब्रिटिशर्स। तो हम ब्रिटिशर्स को गाय की तरीके से मारा काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों से हम ब्रिटिशर्स लड़ रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है।
and there is endless fighting. ये लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही. Every village is held against us and the zamindars have risen to oppose us. गांव के गांव हमारे खिलाफ खड़े हो गए. यानी सिपाहियों के अलावा जो विलेजेस में, गांव में जो आम नागरिक हैं वो भी हमारे अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध जो है वो अब खत्म होने का नाम नहीं लेगा. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Good beta. So, dear student, it is 9:32. Okay, so the next teacher is about to come into this class. So please don't start thank you sir like that. Okay. So I am going to stop this class. Okay, so that's all for today. Thank you, Thank you, students. sir. Good